Good morning, students. Today I am going to discuss the question answers of the poem Heart of the Tree from the ninth grade Treasure Trove. So, in the poem Heart of the Tree, we learned that what is the importance of tree, what is the importance of that person who plants a tree, what does he plant who plants a tree. तो इसमें हमने बहुत सारा रीड किया, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है कि एक इंसान जो प्लांट लगाता है वो क्या क्या चीज़ को प्लांट करता है और उसके साथ वो ठंडी हवा लगा देता है, एक ऊंचा सा टॉवर लगा देता है, मदर क्रोन बर्ड के लिए एक प्लेस बना देता है, हेवन बना देता है। ऐसे ही एक नेशन के लिए जो है वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का जरिया बना देता है। सो नाउ लेट्स discuss the question answer of this poem Heart of the Tree. Who is the poet asking the question in the first line of the extract? List any two things according to the extract that man will do by planting a tree. So students, note down one thing, that in 9th class, as you done in your previous 8th class, that there will be an extract and all the questions will be there from same extract, that is same in the 9th grade. There will be a passage in your question paper and all the questions will be there following that passage. एक पैसेज आएगा आपको और उसी के ही क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि पैसेज कोई आया और क्वेश्चन कहीं और से आ गए। तो जो भी आपने पैसेज करना ध्यान से करना, आंसर भी उसी पैसेज के अकॉर्डिंग ही आएंगे। So let's discuss. Who is the poet asking the question in the first line of the extract? The poet poses the question to the readers. List any two things according to the extract that man will do by planting a tree. According to extract, बच्चे, according to this passage, not according to the full poem. Keep it in your mind always. One who plants a tree plants a friend of sun and sky. He plants a flag of free breeze which provides soothing cool breeze. इस पैसेज के अकॉर्डिंग एक इंसान जो ट्री प्लांट करता है वो क्या प्लांट करता है? वो शेड प्लांट करता है और फ्लैग प्लांट करता है फ्री ब्रीज का, ओके, और एक सन और स्काई के लिए फ्रेंड प्लांट करता है। Give the meaning of the following lines. He plants a friend of sun and sky. He plants the flag of breeze free, the shaft of beauty towering high. He plants a home to heaven and I. So, इन लाइंस में क्या एक्सप्लेन किया गया? ये बताया गया कि जो इंसान प्लांट लगाता है वो सन और स्काई के लिए एक फ्रेंड लगा देता है और एक ठंडी हवा का फ्लैग लगा देता है। ब्यूटी की शाफ्ट बहुत ऊंचाई तक जाती है, ऐसे जैसे टावर हो तो एक ब्यूटी की शाफ्ट लगा देता है, मतलब प्लांट इतना सुंदर होता है। और एक हेवन को ही, हेवन जैसा एक घर वो प्लांट कर देता है। The tree is portrayed as a friend of sun and sky because the tree depends on the sun to carry out the process of photosynthesis. Similarly, the tree is a friend of the sky because it takes in carbon dioxide from the air and release oxygen in the air and thus purify the air. Air को purify करता है ये। Also, transpiration from trees is responsible for cloud formation in the sky before it rains. The tree grows like beautiful tower and it appears that the tree has made a home closer to heaven. In what way are the trees friend of sun and sky? How can a man plant the flag of breeze free? किस तरीके से फ्रेंड है वो सन एंड स्काई का? The tree is depicted as a friend of the sun and sky because the poet feels that one day the tree will grow tall and make friendship with the sky and the sun. पोइट को लगता है कि एक दिन ट्री इतना लंबा चला जाएगा कि वो स्काई और सन के साथ फ्रेंडशिप कर लेगा। The tree depends on the sun to carry out the process of photosynthesis. फ्रेंड्स जो होते हैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो ट्री जो है वो सन से फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट लेता है।
Similarly, the tree is a friend of sky because it takes in carbon dioxide and from the air and release oxygen. ऐसे स्काई का फ्रेंड है ये। स्काई का फ्रेंड कैसे है? स्काई को प्योर कर देता है, एयर को प्योरीफाई कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर लेता है और ऑक्सीजन है जो वो उसको ब्रीथ आउट कर देता है। Also, transpiration from trees is responsible for cloud formation in sky before it rain. ओके, क्लाउड फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। द ट्री इज अ फ्लैग ऑफ फ्री ब्रीज फॉर द लीव्स जस्ट लाइक फ्लैग्स दैट फ्लटर फ्रीली इन द ब्रीज फ्लटर एंड प्रोवाइड सूदिंग कूल ब्रीज। व्हाट इज मीन बाय शाफ्ट ऑफ ब्यूटी? शाफ्ट ऑफ ब्यूटी मीन्स बीम ऑफ ब्यूटी। व्हाट इज कंपेयर टू द शाफ्ट? शाफ्ट से किस चीज को कंपेयर किया गया है? ट्री की लेंथ को कंपेयर किया गया है। What is the impact of beginning the poem with the question, what is the figure of speech used here? Rhetorical figure of speech is used here. And the impact of the beginning a stanza with the question is done to create curiosity and annexity. Second passage, what is known as mother croon of bird? Mother croon is the soft song that mother bird is singing to her young ones. Mother croon क्या होता है? वो सॉफ्ट सॉन्ग होता है जो एक मदर बर्ड अपने बच्चों के लिए सिंग करती है, जैसे एक माँ अपने बच्चों को लोरी सुनाती है। वाई इज द सॉन्ग संग इन द हश्ड वॉइस? हश्ड वॉइस में सॉन्ग क्यों गाया जाता है? इट इज संग इन द हश्ड वॉइस बिकॉज इट इज संग ड्यूरिंग ट्विलाइट व्हेन ह्यूमन एक्टिविटीज। वॉइस हश्ड इसलिए लगती है क्योंकि एटमॉस्फेयर है जो वो काम होता है बिल्कुल। व्हाट इज ट्विलाइट? ट्विलाइट क्या होती है? ट्विलाइट इज द फेंट लाइट एट द एंड ऑफ द डे। जैसे ही दान टाइम होता है, शाम का टाइम होता है, उस टाइम को ट्विलाइट बोला जाता है जब थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है। वाई इज इट हैप्पी ट्विलाइट? हैप्पी ट्विलाइट क्यों बोला गया इसको? क्योंकि उस टाइम पे मदर जो है वो वापस अपने बच्चों के पास आती है, उनको एक लोरी सुनाती है, बच्चों से मिलती है। इट इज हैप्पी ट्विलाइट बिकॉज द मदर क्रोन सिंग्स टू हर यंग वन हैप्पीली विथ सॉफ्ट एंड जेंटल वॉइस। द वर्ड्स हाई पिच्ड टोन एड्स टू द प्लीजेंट हार्मनी ऑफ द नेचर। सो नेक्स्ट इज योर थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय अ ट्रेबल हेवंस हार्मनी? ट्रेबल इन अ हाई टोन इन म्यूजिक। ट्रेबल क्या है? जब ऊंची आवाज में म्यूजिक चलता है। What is role does the treble play in heaven's harmony? हेवन की हारमोनी में ट्रेबल कैसा रोल प्ले करता है? ट्रेबल इज अ हाई टोन इन म्यूजिक। हारमोनी इज द वे इन विच डिफरेंट म्यूजिकल नोट्स आर प्लेड और sung together and combined to make pleasant sound. The treble produced by the mother croon sings into the pleasant harmony of the universe. तो इसको मदर क्रून को, जो माँ के गाने की आवाज़ है, एक मदर बर्ड के गाने की आवाज़ है, वो एक यूनिवर्स में अपनी ही टोन, अपना ही म्यूजिक जो है पैदा कर देती है। Give 4 functions which a tree perform on this earth. So बेटा चेक दिस क्वेश्चन केयरफुली, इसमें एक्सट्रैक्ट की बात नहीं की गई है, ओनली पूछा गया गिव 4 functions which a tree perform on this earth and you can write down any 4 according to your poem. A friend of sun and sky, breeze free flag, a home near to earth, heaven, shelter to mother bird. Okay, next is the water evaporates, condenses and falls as rain. What role do the trees play in this process of producing rain? The transpiration from trees is responsible for cloud formation in the sky before it rains. Okay. Next one is, how do the last 2 lines of the extract explain the process of regeneration? How does the man plant the forest's heritage? फॉरेस्टर्स हेरिटेज कैसे प्लांट हो जाता है? जैसे एक इंसान एक प्लांट को लगाता है, वो प्लांट बड़ा हो जाता है, बड़ा होकर उसके अपने आप ही सीड्स जो है वो गिर जाते हैं, सीड्स के थ्रू बारिश होती है, एक नया प्लांट पैदा होता है, तो एक प्लांट से कितने ही और प्लांट्स बन जाते हैं और धीरे धीरे वो फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो खाली एक प्लांट लगाना मतलब
he plants a forest. How do the trees provide for the harvest of the following years? Trees not only beautify environment but purify the air and provide us with wood, timber, fruit, medicine. हार्वेस्ट फसल कैसे होती है दरख्तों से? फसल मीन्स जिससे हमें इनकम आती है। तो इनकम कैसे आती है? हम टिम्बर को बेचते हैं, फ्रूट्स को बेचते हैं, मेडिसिन्स बना के बेचते हैं। ओके, इस तरीके से ये हमारी हेल्प करते हैं। व्हाट डू द एक्सप्रेशन अनबॉर्न आइज इंडिकेट? एक्सप्रेशन अनबॉर्न आइज, जो अभी पैदा नहीं हुई वो वाली आंखें, दैट इज फ्यूचर। फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाले बच्चे हैं। व्हाट विल दे सी? क्या देखेंगे वो प्लांट्स को देखेंगे जो हमने लगाए हैं, जिनकी हमें शेड मिलती है और हमें ब्लेस कर रहे हैं विद द टेंडर रेन। रीजनरेशन ऑफ द ट्रीज। ब्यूटीफुल प्लेन्स। Next question is, the poet says he plants in sap and leaf and wood. Which figure of speech is used here? So, metonym figure of speech is used here. So next question is, what is meant by forecast through a civic good? Civic good एक अच्छा सोशल इंसान। कैसे बनता है एक अच्छा सोशल इंसान? जो ट्री को लगा रहा है, वो एक ट्री को लगा रहा है, उसके नेबर्स को शाम मिलेगी, उसके देश को इनकम मिलेगी, तो वो एक अच्छा नागरिक बना हो, अपने आप ही एक अच्छा नागरिक है। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। हु इन द हॉलो ऑफ हिज हैंड होल्ड्स ऑल द ग्रोथ ऑफ आवर लैंड? द मैन हैंड होल्ड्स द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड। जो ट्री को लगा रहा है वो मैनकाइंड के फ्यूचर को प्लांट कर रहा है। आवर लैंड विल बिकम बैरन विदाउट ट्रीज। ट्रीज के बिना हमारी जो धरती है वो बंजर बन जाएगी। इन वट वे अ नेशन ग्रोथ डिपेंड्स ऑन अ प्लांटिंग ट्री? हाँ जी, एक देश की जो ग्रोथ है वो कैसे डिपेंड करती है? खाली ट्री लगाने से। आप सोचोगे एक पौधा लगा दिया उससे नेशन को क्या फ़र्क पड़ता है? बच्चे, पड़ता है। हम ट्री से टिम्बर लेते हैं, ट्री से मेडिसिन बनती है, ट्री से एयर प्योरीफाई होती है, ट्री से कूल ब्रीज मिलती है, ट्री से रेनिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ट्री की टिम्बर को, मेडिसिन को बेच के हम जो है मनी अर्न कर सकते हैं। थैंक यू।